Good morning, dear students. Students, as we were studying about cell cycle, and I told you that a cell cycle includes growth, development, as well as cell division. And I told you that in a cell cycle, basically there are two phases: interphase and M phase. M phase means mitosis phase. As you know that in interphase, the cell starts to grow, it starts to develop, it completely matures and then undergoes M phase or mitosis phase. Now today I will tell you that what are the different stages or events of the mitosis phase. Now I want to tell you that during mitosis, the mitosis phase is divided into four different phases, or we have to say that mitosis includes two different phases initially: karyokinesis and cytokinesis. And the karyokinesis includes prophase, metaphase, anaphase, telophase, and finally it undergoes cytokinesis. ठीक है now what happens in interphase? You know very well that during the interphase cell replicates. ठीक है and the cell is going to replicate its DNA, ensuring that when does it divide at the end of the mitotic phase, each of the new created daughter cell will contain a full set of gene. So means what happens during the interphase? As we know that there are three phases: gap 1 phase, S phase, and gap 2 phase. In this phase, initially the uh, gap 1 phase, the cell content increases, shape increases, cell grows in size and multiplies its protein, while in the synthetic phase DNA replication occurs. So DNA replicates and increases its number, and finally gap 2 phase, once again the cell is going to become mature and then it undergoes mitosis. Mitosis means M phase, means cell division. Now mitosis is the mechanism that allows the nuclei of the cell to split and provide each daughter cell with a complete set of the chromosome during the cellular division. ठीक है, तो what happens in the mitosis? A cell, during the stage of the mitosis, a cell or the nucleus of the cell is going to divide or going to split and forming two daughter nuclei, and it assures that कि each of the daughter cell will have equal number of chromosome as the parental cell have. ठीक है, दिस कपल्ड विद द साइटोकाइनेसिस, और ये रिएक्शन जो आगे है साइटोकाइनेसिस के साथ बढ़ती है. इनिशियली व्हाट हैपन्स? इनिशियली द न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स विच इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस and followed by the cytokinesis, means division of the cytoplasm, and it occurs in all organisms. Either a organism is unicellular organism, either it is a multicellular organism, either it is a plant cell or animal cell, means in each and every cell this process of the cell division or the mitosis occurs. ठीक है, now here you are observing, this is the diagram showing mitosis. Now the first one phase prophase, then the metaphase, then anaphase, and then telophase. ठीक है, now what happens in the prophase? I am going to tell you that during this is the first stage of the mitosis, and in prophase what happens? I am going to tell you that during this first mitotic stage, the nucleolus fades and the chromatin, replicated DNA and associated protein condense into the chromosome. तो इनिशियली क्या होता है? जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होती है. न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर. और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिसअपियर. ये भी आपकी क्या होती है? फेड होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है. और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, दीज क्रोमेटिन फाइबर्स आर बिकमिंग कंडेंस. तो ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर के कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं स्टोन प्रोटीन के साथ. एक्चुअली जो दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड स्टोन प्रोटीन, एंड ये जो कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, और ये स्टोन जो आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, दे आर कंडेंसिंग और दे आर फॉर्मिंग अनदर स्ट्रक्चर विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम. ठीक है, नाउ ईच रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम कंप्राइजेस ऑफ टू क्रोमेटिड्स. तो यानी कि आपका जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के हो गए हैं, इन्होंने एक अलग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं. उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमोजोम. नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व क्रोमोजोम, तो यू विल फाइंड आउट दैट ईच क्रोमोजोम हैविंग टू क्रोमेटिड्स. ठीक है, ईच क्रोमोजोम हैविंग टू क्रोमेटिड्स. ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिड होते हैं, अगर हम इस क्रोमोजोम के देखेंगे तो आपको लगेगा इसके बीच में गांठ सी है एक. ठीक है, जैसे बीच से गांठ बांधी है और दो सिरे उसके फ्री हैं. तो जो बीच में आपको टाइटली एक गांठ की तरह, एक नॉब की तरह जो स्ट्रक्चर दिखता है, उसको तो सेंट्रोमियर बोलते हैं. बाकी आपको इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स नजर आएंगी. ठीक है, एंड बोथ ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के पास एक दूसरे का सिमिलर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. नाउ हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ अ प्रोफेस. यू आर ऑब्जर्विंग हेयर कि the nucleolus is completely disappeared, and the nuclear membrane is also going to disappear, and the condensed chromatin fiber have taken some
specific structure, egg shape structure we can say that. And they have two sister chromatids, and the sister chromatids having in between centromere. You are observing they have in between centromere. So this is the structure of prophase. Now then the second phase comes. The second phase is called metaphase. Okay, this is the second phase, and here the न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन. तो न्यूक्लियर जो एनवेलप है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड अ लार्ज प्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड स्पिंडल अटैच टू द ईच सिस्टर क्रोमेटिड. तो और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोल्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं स्पिंडल पोल्स, ठीक है, एक पोल आपका ऊपर की ओर होगा सेल पे, एक नीचे की ओर पोल होगा. तो इनसे कुछ प्रोटीन्स के बने हुए फाइबर से निकलते हैं. ये फाइबर कहलाते हैं आपके स्पिंडल फाइबर. तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो चुका है, और जो आपके क्रोमोजोम हैं वो इक्वेटर के पास लाइन अप हो जाते हैं, सारे के सारे बिल्कुल हॉरिजेंटली, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है ना बीच में. सिमिलरली एक जो सारे के सारे क्रोमोजोम्स हैं वो इक्वेटर पे लाइन अप हो जाते हैं. और जो क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स में आपने देखा था बीच पे सेंट्रोमियर होता है. सेंट्रोमियर के में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर. और एक काइनेटोकोर की मदद से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं स्पिंडल फाइबर के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं. नाउ लाइक दिस, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग हेयर. बीच में आप एक आप देख रहे हैं मेटाफेज प्लेट बन रही है इक्वेटर के पास, एंड ऑल द क्रोमोजोम्स आर अलाइंड इन द इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट, एंड द सेंट्रोमियर इज अटैच्ड with the spindle fiber at kinetochores. Now the third phase starts. Third phase is called anaphase. Anaphase begins as the centromere of each pair of chromatid split. अब क्या होता है देखो, अब स्पिंडल फाइबर खींचते हैं इनको अपने अपने पोल्स की तरफ. तो क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है बीच से स्प्लिट हो जाती है. स्प्लिट होने की वजह से जो दो आपके सिस्टर क्रोमेटिड थे वो भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. नाउ बीइंग एज अ सेंट्रोमियर ऑफ ईच पेयर ऑफ द क्रोमेटिड स्प्लिट्स इफेक्टिवली डबलिंग द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम. तो आपके क्या होता है, इस वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो जस्ट डबल हो जाएगा. ठीक है ना. वंस सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड ईच नाउ एन इंडिपेंडेंट क्रोमोजोम विथ its own centromere begin moving apart toward the opposite poles of the cell. अब क्या होता है देखो, अगर आप पिक्चर देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा. ना ये सिस्टर क्रोमेटिड जो एक दूसरे के साथ अटैच थे अभी तक, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग पोल्स की ओर चलना स्टार्ट करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हर एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है अब वो खुद में अपना एक क्रोमोजोम बन चुका है, एक इंडिपेंडेंट क्रोमोजोम बन चुका है. ठीक है. और जिसके पास अपना एक सेंट्रोमियर है. नाउ दे आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द दे आर मूविंग टुवर्ड्स द poles. ठीक है. Now the movement of made possible via two mechanisms. Now what are these mechanisms we have to discuss in higher classes. Now the kinetochore fibers attached to each centromere begin to the shorten and pulling the chromosome towards the pole. At the same time the polar microtubules and form opposite ends of the cell form cross bridges and equatorial plane pushing the pole apart by becoming longer. तो here you are observing that कि जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स के एंड है वो सेंटर की ओर लोकेटेड है, एंड जो आपके स्पिंडल फाइबर है इन्हें लगातार शॉर्ट होते चले जा रहे हैं और उनको पोल्स की ओर खींचते चले जा रहे हैं. सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द एनाफेज. एंड नाउ द लास्ट फेज बिगिंस, एंड द लास्ट फेज इज कॉल्ड टीलोफेज. इन टीलोफेज द डॉटर क्रोमोजोम अराइव्स एट द स्पिंडल पोल्स. तो आपके जो डॉटर क्रोमोजोम या जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड जिनको हम कह सकते हैं वो पोल्स की ओर पहुंच जाते हैं. आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द क्रोमोजोम्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू रिफॉर्म. अब आपका कंप्लीटली जब क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं तो व्हाट हैपन्स, तो ये पोल्स पे पहुंचने के बाद दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अराउंड बनना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. एंड व्हेन टीलोफेज इज कंप्लीटेड अ न्यू सेल मेम्ब्रेन इज बीइंग फॉर्म्ड. तो जैसे जैसे आपकी टीलोफेज ख़त्म होने की ओर आती है तो आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने की ओर होती है. ठीक है ना. तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर लेगी, दो अलग अलग सेल बना लेगी. कैसे, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको. ठीक है. व्हेन द टीलोफेज इज कंप्लीटेड अ न्यू सेल मेम्ब्रेन इज बीइंग फॉर्म्ड. द फाइनल स्टेप्स इन टीलोफेज इन्वॉल्व द इनिशिएशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लीवेज. नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे क्लीवेज बन रहा है. जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्लीवेज या फुरोइंग प्रोसेस बन रही है. आप देख रहे हैं अंदर की ओर धंसता हुआ चले जा रहा है. ठीक है. ईच ऑफ द न्यू डॉटर सेल्स to ultimately yield to separate cells during the cytokinesis. The next phase is cell division. तो here you are observing तो टीलोफेज आपकी फिनिश हो रही है, यानी कि दो आपके अलग अलग न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो जा रहे हैं. दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, दोबारा से न्यूक्लियोलस बन रहा है, और साथ में आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रही है. नाउ व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन नोन एज साइटोकाइनेसिस. ठीक है. विच यूजुअली बिगिंस ड्यूरिंग द लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज as the nuclear envelope is reforming and the chromosome are recondensing. During this stage cytoplasm is divided and divides into two daughter cells. Is it clear? Thank you. Bye bye.